Yes, students. Good morning, good afternoon, all of you. Yes, Now I'm just sharing my screen. Okay. Yes, students. So tell me in the journal entries, if means the initially the recording of transaction journals, if you are facing any problem, if anything is not clear, is my screen visible to you people? yes, sir. Yes, sir. तो देखो बेटा, सभी लोग सुन लीजिए। देखिए, ये देखा जाए तो 20-22 जर्नल एंट्रीज हैं जो आपको हमेशा पूछी जाएंगी, है ना? This is hopefully this is visible to you people properly. So these are only the transactions. तो इनको हम properly देख भी लें, समझ भी लें, है ना? कई बार क्या होता है कि हम लर्न कर लेते हैं उसको कि amount brought in by the businessman, so cash account debit to capital, cash and other assets brought in the business. तो business में जो भी assets आ रही है, let's say इसकी building, plant, cash or anything, whatever is coming to the business, that would be debited and capital would be there. Goods purchased on the credit, है ना? Goods purchased on the credit, अगर मान लीजिए है कुछ, so if it is purchased on the credit, so purchase account would be debited and the supplier's name would be debited. And this is the entries for input CGST, SGST, ISGST, whatsoever, है ना? तो one thing I just wanted to tell you students here, especially in the terms of GST. So GST is there in very means introductory level in your class. So your main focus should be there on learning of concept of debit and credit, rules of debits and credit, debiting the account, crediting the account, and other details. Okay, so make sure that you are confident enough over the recording of a transactions, and if you are facing problem, so we need to understand, we need to correlate with the rules of debits and credit कि कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. सो हमें बहुत ज्यादा इसमें जीएसटी में नहीं उलझना है ना, क्योंकि वो एक छोटे से पार्ट के लिए असेस होगा. हमारा जो फोकस होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए? ऑन दिस रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. ठीक है? सो यू सी दिस goods purchase, now sale of goods, so name of the customer, to sells, and whatever the tax we are collecting. Goods purchased for cash, so purchase to cash, cash sales, cash to sells. Opening of bank account, withdrawal of cash from bank, collection for cash check from the customers, for payments of cash check to the suppliers, bid dates, एक नया transaction. बेट डेट्स का मतलब क्या होता है? बेट डेटर्स. अब आप बेट डेटर्स किसको कहोगे? डेटर्स, हु इज द डेटर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी. जिसको हमने क्रेडिट अमाउंट व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड डेटर्स? है ना? डेटर इज द पर्सन्स टू whom we have sold the goods on credit, और द डेटर इज द पर्सन्स फ्रॉम whom we have to receive the money. ठीक है? जिससे अपने को पैसा लेना है, जो हमारा देनदार है, he is our debtor. ठीक है? So debtor would be the good debtor. If when he would be good and when he would be bad, can you tell me? सर जब वो पैसे दे दे तो वो गुड होगा, जब नहीं दे पाएगा तो बैड. Simple. So bad dates is nothing but the abbreviation of bad daters. And good debtor is not mentioned. Daters, that meant to say from whom we have to receive the money. Bad dates, that meant to say bad debtors, those who are not going to pay the money. Okay? So if any bad debtors are there or bad dates are there, then that is a loss for the business and will be debiting it, and that will reduce our debtor. Okay, so bad dates is there. Bad dates term has been used for the amount what is due towards the debtors but is not to be received in future. So we'll consider is bad dates. Okay, here it is, this bad dates account debit to debtors. हमें मार्केट से 50,000 रुपए लेने थे, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा डेटर है जो कि सपोज कहीं चला गया है और कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, जिससे कि हमें 5,000 रुपीज लेने,
तो पहले हमारे डेटर्स 50,000 के थे, लेकिन अब उस एक व्यक्ति का तो पता ही नहीं है, और हमने बाकी दूसरे जो व्यापारी हैं उनसे पूछा, तो वी हैव केम टू नो कि नाउ ही इज नॉट देयर इन द मार्केट एंड वी आर नॉट एबल टू रिसीव द मनी इन फ्यूचर. So considering the prudence principle, considering the prudence principles, what we have done, we have reduced 5,000 rupees toward that Bhagode debtors, and now our debtor is only 45,000. So bad debts account debit to debtors. Debtors को हमने reduce कर दिया, bad debts considering a loss हमने उसको debit कर दिया, है ना. So this is one transaction. आगे बढ़ते हैं. रिकवरी ऑफ bad debts. इन केस अगर वो व्यक्ति वापस आ जाता है और उससे हमें पैसे मिल जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू bad debts रिकवर्ड. फिर हम डेटर्स अकाउंट को नहीं लिखेंगे क्योंकि डेटर्स अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है. डेटर्स अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, इसलिए फिर उस कंडीशन में bad debts रिकवर्ड, दैट इज रिड्यूस ऑफ लॉसेस. ठीक है. आगे, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश. मशीन इज कमिंग टू द बिजनेस, तो मशीन टू कैश. डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द असेट्स. सो डेप्रिसिएशन, अगर हमारे मशीन की या प्लांट की वैल्यू कम हो रही है ना, प्लांट या मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो दिस इज लॉस फॉर द बिजनेस. अगर बैठे बिठाई कम हो रही है तो लॉस. अगर यूज हो रही है और फिर कम हो रही है, मतलब अगर कार हम चला रहे हैं और उसका वैल्यू कम हो रहा है, तब तो एक्सपेंसेस है. नहीं तो हम है दुबई में, हमारी कार रखी है यहाँ पर गैराज में और वो पड़े पड़े ही खराब हो रही है, तो वो लॉस है. So depreciation could be the expenses or loss, both. ठीक है. So that would be debited and the value of assets would be decreased. So the concerned assets value assets would be credited because the assets increases in the debit side and decreases in the credit तो side. 15 वाला नहीं समझ आया. और देख 15 वाले assets and loss. ठीक है ना. ये तो बहुत सिंपल है ना बेटा. 15 वाला जो ट्रांजैक्शन है, इसमें क्या है कि हमारी कोई पुरानी एसेट्स थी, उसको हमने सेल कर दिया. डिस्पोज का मतलब हो रहा है पुटिंग इट आउट ऑफ यूज और जस्ट डिस्पोजिंग इट. दैट मीन टू से द अकाउंट इज गोइंग टू बी क्लोज ऑफ दैट एसेट. हमारे पास में पुराना फर्नीचर था 20,000 का, जिसकी बुक वैल्यू थी 20,000 की. नाउ वी हैव टू डिस्पोज इट. डिस्पोज का मतलब उसको आउट ऑफ अकाउंट करना, अकाउंट्स में उसके अकाउंट्स को क्लोज करना. हाउ वी आर मींस कैसे हम उसको डिस्पोज कर रहे हैं, कैसे उसके अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, दैट इज द थिंग अबाउट. ठीक है. तो 20,000 का फर्नीचर था, हमने उसको 15,000 में सेल कर दिया. सो 15,000 रुपीज वी हैव रिसीव्ड, 5,000 रुपीज ऑफ लॉस एंड 20,000 रुपीज ऑफ फर्नीचर इज डिस्पोज्ड नाउ. सो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. 20,000 का फर्नीचर था, उसको 22,000 में बेच दिया, मतलब प्रॉफिट में चला गया वो. तो 20,000 का फर्नीचर था, नाउ वी आर रिसीविंग 22,000 रुपीज. तो जैसे यहाँ पर ये लॉस हुआ, लॉस की बजाय फिर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट. तो ये लॉस हम कट कर देंगे और यहाँ पर नीचे लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. सो कैश में हो जाएगा हमारे 22,000, अब फर्नीचर 20,000 और 2,000 रुपीज जो है वो प्रॉफिट में चले जाएंगे. सिंपल. ठीक है. इज इट क्लियर 15 वाला? यस. है ना. नाउ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर. कस्टमर अगर गुड्स रिटर्न कर रहा है तो क्या करेंगे, गुड्स इज कमिंग बैक टू द बिजनेस, सो डेबिटेड. एंड हु इज द गिवर, कस्टमर. सो जो भी कस्टमर है विल क्रेडिट द गिवर. गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर, गुड्स इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, क्रेडिटेड. हु इज द यहाँ रिसीवर? पे आउटपुट जीएसटी क्यों लिखा हुआ? हाँ जी गुड्स वापस आ रहे हैं तो यहाँ पे बेटा आउटपुट. हाँ हाँ देखो, आउटपुट जीएसटी इसलिए लिखा हुआ है कि जो गुड्स हमने मान लीजिए सेल किया था, ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. जब हमने सेल किया था तो हमने उस पर टैक्स कलेक्ट किए होंगे, ठीक है ना. हमने कोई गुड्स सेल किया है, सो वी वुड हैव बीन क्रेडिटेड द आउटपुट जीएसटी, है ना. आउटपुट जीएसटी एंड द सेल्स वुड बी टुगेदर, साथ में रहते हैं वो, है ना. परचेज और इनपुट जीएसटी साथ में रहता है, ठीक है ना. परचेज के साथ में इनपुट चलता है. जब हम टैक्स पे कर रहे हो तो इनपुट, जब हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हो तो आउटपुट. अब जब गुड्स रिटर्न हो रहा है, जब वो गुड्स रिटर्न हो रहा है, हमारा सेल्स कम हो रहा है. अगर हमारा सेल्स कम
होगा तो जो हमारा टैक्स कलेक्शन है वो भी कम होगा ना बेटा। हम अगले को ये तो बोलेंगे नहीं कि ठीक है भाई आपने गुड्स वापस रिटर्न कर दिया लेकिन जो टैक्स है वो तो लगेगा नहीं। जब सेल ही नहीं हुआ तो उस पर टैक्स हम क्यों देंगे गवर्नमेंट को? आउटपुट आउटपुट जीएसटी इज व्हाट अवर लाइबिलिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आउटपुट जीएसटी इज व्हाट अवर लाइबिलिटी। तो अपनी लाइबिलिटी कम हो रही है तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, इज इट क्लियर? यस है ना? गुड्स रिटर्न हुए ना, गुड्स रिटर्न हो रहे हैं मतलब सेल हमारा कम हो रहा है। अगर सेल कम हो रहा है तो फिर अपना टैक्स कलेक्शन भी कम हो रहा है और टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है तो फिर हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, सो वी हैव डेबिटेड इट। अब इसके बाद में जस्ट अपोजिट है, अगर परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न है तो जो टैक्स हमने पे किया होगा है ना उसमें वो भी कम होगा। सो इसलिए इनपुट जीएसटी को यहाँ पर क्रेडिट कर रखा है। इनपुट जीएसटी है जो भी है, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, बट दैट वुड बी क्रेडिटेड। ओके, now distribution goods as a free sample we have already discussed. So advertisement expenses, marketing expenses, free sample expenses भी कर सकते हैं, डेबिट टू गुड्स टू परचेस क्योंकि हमारा परचेस कम होगा। और उसके साथ में हमने ये इनपुट सी जीएसटी वगैरह भी कर रखा है। क्यों? क्योंकि देखिए वो गुड्स अगर हमने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो उसके सेट ऑफ होने के चांसेस नहीं है ना, और उसके बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे, वो एक प्रकार से हमने कंज्यूम कर लिए। ठीक है ना, सेट ऑफ कब होगा? जब वो चीज सेल होगी। ठीक है ना, सो सिंस वी हैव ऑलरेडी पेड, सिंस वी हैव ऑलरेडी पेड, तो अगर वो हमने बेचा ही नहीं है, जो गुड्स हमने परचेज किया है उसको हम वापस सेल ही नहीं करने वाले हैं, तो जो टैक्सेस हमने पे किए हैं वो सेट ऑफ होने की चांसेस तो है ही नहीं, इसलिए उसको फ्री सैंपल के साथ में हमने इनपुट्स सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी को भी क्रेडिट किया। ठीक है, फॉर एबनॉर्मल लॉसेस। अब एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस व्हाट इज यूज्ड टू ओकर इन द बिजनेस, एबनॉर्मल लॉस जो कि कभी कभी होता है किसी बड़े रीजन के कारण। ठीक है, so loss is a loss, ultimately it would be debited. कैश का लॉस है तो कैश क्रेडिटेड, गुड्स का लॉस है तो गुड्स क्रेडिटेड, फर्नीचर का लॉस है तो फर्नीचर क्रेडिटेड। ओके, ड्राइंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द डेटर्स। ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा, पर फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल्स रिसीवेबल क्या है। तो वो एक प्रोमिसेस है, रिटर्न प्रोमिसेस कि वन विल पेड विद इन 3 months, 6 months, व्हाटसोएवर द पीरियड इज देयर। सो जैसे हमें 50,000 रुपीज राम से लेने हैं, लेकिन राम ने हमें एक प्रॉमिस लिख करके दे दिया कि 20,000 रुपीज का मैं पेमेंट 3 months के बाद में कर दूंगा। So this promise would be considered as a bill of exchange and that would be the separate assets than the debtors. अब हमें राम से 30,000 लेने क्योंकि 20,000 के लिए उसने प्रॉमिस लिख करके दे दिया, और उस प्रॉमिस को हम चाहें तो उस रिटर्न प्रॉमिस के बेसिस पर वी कैन ऑल्सो गेट इट फाइनेंस फ्रॉम बैंक। हम बैंक से भी वो पैसा ले सकते हैं उस प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पर। बट हाँ, अगर राम ने टाइम से पेमेंट नहीं किया तो बैंक फिर वो पैसे हमसे लेगा, साथ में पेनल्टी भी लेगा। ठीक है ना, तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। सो डू नॉट स्टक इन दिस। सर अगर एक ट्रांजैक्शन ऐसा हो कि डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000 तो उसको कैसे लिखेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000 तो डिस्काउंट किस फॉर्म में रिसीव हुआ बेटा अपने पास? कैश के फॉर्म में रिसीव हुआ है। हाँ, कैश के फॉर्म में। हाँ, कैश के फॉर्म में केस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। हाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश मिल रहा है हमें। और अगर ठीक है ना, डिस्काउंट अलाउड 5,000, डिस्काउंट अलाउड 5,000 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल किसी भी, देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रेड या देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्काउंट, ये हमने थ्योरी में पढ़ा है ना, केस डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, वी हैव स्टडीड द टू टाइप ऑफ डिस्काउंट, केस डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, सीडी एंड टीडी। सो वी ओनली रिकॉर्ड द केस डिस्काउंट इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। डू वी नो दिस? हम ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन नहीं करते। ठीक है, सो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट और केस डिस्काउंट। So trade discount is a discount given by one trader to the another trader for business margin.
बिजनेस मार्जिन के लिए, है ना, बिजनेस मार्जिन के लिए एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को क्या करता है, एक डिस्काउंट ऑफर करता है, जिसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो उसको लिखा नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता मतलब उसको हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेट्स से कि वी आर बाइंग द गुड्स फ्रॉम वन ऑफ आवर सप्लायर हु इज लोकेटेड इन अहमदाबाद। तो भाई 1 लाख रुपीस का गुड्स है एंड ही ऑफर्ड अस 20% डिस्काउंट। तो 1 लाख का गुड्स उन्होंने हमें 20% डिस्काउंट पर, मतलब कि 80,000 में दे दिया। तो हम उसकी पहली एंट्री 80,000 से बनाएंगे कि परचेज 80,000 रुपीज टू एबीसी ऑफ अहमदाबाद, या परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 80,000। उसमें 20,000 का डिस्काउंट अपन लिखेंगे ही अगर वो ट्रेड डिस्काउंट है। समझ में आ गया बेटा? पहली बात तो ये। यस सर। एनी डाउट इन दिस? है ना। अब बात आती है केस डिस्काउंट की। तो केस डिस्काउंट कब ऑफर किया जाता है और किस सिचुएशन में ऑफर किया जाता है? ये केस डिस्काउंट है क्या, कोई बता सकता है? What is case discount? If any students can enlighten this. ओहो, इतने सारे स्टूडेंट है क्लास में आज। What is case discount? सर जब गुड्स नहीं बिक रहे हो तो उस पर डिस्काउंट देते हैं। हाँ ठीक है। हाँ आप भी कुछ बोल रहे थे मोहित? तो मतलब कोई कोई ऐसे डिस्काउंट देते हैं ना, मतलब अगर गुड्स नहीं बिक रहे हो तो उस पर डिस्काउंट दे देते हैं। नहीं वो तो ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए केस डिस्काउंट को आप सिंपल वर्ड्स में समझो तो केस डिस्काउंट इज अ डायरेक्ट बेनिफिट गिवन टू द कस्टमर फॉर सर्टेन रीजन इन द सेंस फॉर द मेकिंग पेमेंट ऑफ कैश। जैसे आप लोग करते हो ना कि ऑनलाइन शॉपिंग करके कि अगर आपने HDFC कार्ड से पेमेंट किया तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यस सर। हाँ जी। हाँ केस डिस्काउंट ही तो हुआ ना वो। मैं समझा रहा हूं आपको कि केस डिस्काउंट का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम नगद कैश में ही होना चाहिए, है ना, कैश और बैंक, है ना, कैश और थ्रू बैंक, बट अल्टीमेटली यू वुड बी गेट, है ना। तो अगर मान लीजिए अपन ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उस पर लिखा है कि इफ यू आर गोइंग टू पे पेटीएम से या गूगल पे से किया तो आपको 5% का 10% का डिस्काउंट मिलेगा, या फिर ऐसा ही कुछ, ठीक है। या फिर अपन किसी दुकान पे गए, हमने कोई XYZ चीज परचेस की और उसका सपोज पेमेंट हमने करना है, तो शॉपकीपर ने हमसे कहा है कि भाई इफ यू आर मेकिंग पेमेंट इन कैश, आप अगर तुरंत पूरा पेमेंट कर देते हो देन यू विल गेट 5% डिस्काउंट, और अगर आप पेमेंट इसको 2-3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे तो फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो केस डिस्काउंट इज टू गिव द इमीडिएट बेनिफिट टू द कस्टमर और जस्ट फॉर द इमीडिएट पेमेंट। या कोई क्रेडिट, जैसे कोई डेटर है, पिछले काफी टाइम से पेमेंट नहीं कर रहा है, सपोज वी हैव टू रिसीव 20,000 रुपीज फ्रॉम हिम, है ना, कि 20,000 रुपीज हमें उसको लेना है लेकिन काफी दिनों से नहीं दे रहा है, तो उसको हमने केस डिस्काउंट ऑफर किया, चल एक काम करे यार भाई, तू 20,000 मत दे, 18,000 पे कर दे, 2,000 रुपीज का डिस्काउंट मान ले, ठीक है ना। सो दिस इज द केस डिस्काउंट। सो जनरली वी कंसीडर, है ना, अब इसको ध्यान से सुनना कि जनरली केस डिस्काउंट डू नॉट स्टैंड अलोन। जनरली केस डिस्काउंट हमेशा एक केस ट्रांजैक्शन के साथ में ही होता है, प्लीज डू अंडरस्टैंड। अगर ट्रांजैक्शन, इफ द ट्रांजैक्शन इज देयर, तो अगर केस डिस्काउंट वर्ड है मतलब वो केस में ट्रांजैक्शन है, तभी केस डिस्काउंट दिया जा रहा है या मिल रहा है। सो केस डिस्काउंट डू नॉट स्टैंड अलोन, इट इज ऑलवेज विद द ट्रांजैक्शन, इट इज ऑलवेज विद द ट्रांजैक्शन। वो खरीदी या बिक्री हो रही तो उसी समय फॉर इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट टू पे और टू रिसीव, वन इज ऑफर केस डिस्काउंट और केस डिस्काउंट पेड और डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस, इज इट क्लियर? किसने पूछा था क्वेश्चन ये?
ठीक है, अब बेटा बताओ कि आप हाँ अभी आपका बताओ कि क्वेश्चन क्या है। सर वो क्वेश्चन था कि डिस्काउंट अलाउड 5000 डिस्काउंट रिसीव्ड। हाँ नहीं तो डिस्काउंट अलाउड है ना, तो डिस्काउंट अलाउड ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। अब वो ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है, केस डिस्काउंट भी हो सकता है, तो एक पूरा स्टेटमेंट आएगा, ठीक है ना। अब नॉर्मली अगर लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड, सो डिस्काउंट अलाउड सो वुड बी डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड वुड बी डेबिटेड। अब उसको क्रेडिट किस में करोगे, किस फॉर्म में आपको डिस्काउंट मिला है, कैश के फॉर्म में मिला है या गुड्स के फॉर्म में मिला है कैश। है ना, है ना। So that is the thing. So if you are receiving a cash discount, so cash account debit to discount, ठीक है ना। If you are Yes. offering a discount, if you are offering the discount, so discount allowed debit to cash. सर कमीशन रिसीव्ड का कैसे होगा? Commission receive हो रहा है, so commission is your income, so you are crediting it, the commission, and on other side you are receiving cash, so cash would be debited, cash account debit to commission. Commission दे रहे हो तो commission account debit to cash. सर ऐसा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट या फिर सीधा कमीशन? हाँ कमीशन रिसीव्ड अकाउंट या फिर कमीशन अकाउंट? नहीं नहीं कमीशन, ये देखिए ये जो चीजें है ना बेटा, ये तो इट कुड बी अलाउड और रिसीव्ड। जैसे डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, रिसीव्ड भी हो सकता है, कमीशन अलाउड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, रेंट अलाउड भी हो सकता है, रेंट पेड भी हो सकता है, रेंट रिसीव भी हो सकता है। तो ये जितने भी नॉमिनल आइटम्स हैं इन सभी के साथ में हम रिसीव्ड या अलाउड वर्ड यूज करेंगे ही करेंगे। दैट वुड बी मेंटेन सेपरेटली, अदरवाइज दिस अकाउंट्स वुड बी मिक्स, दिस अकाउंट्स वुड बी मिक्स्ड। रेंट के साथ एक्सपेंस लिखेंगे बाद में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। हाँ लिखो ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, we should write. Okay. Yes, any other question students? देखो दिस इज वेरी गुड, अगर हम इस तरीके से जब अपने डाउट्स डिस्कस करेंगे ना तो चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर होंगी। Yes, any other question students? So the things are what students कि these are the few, देखिए उन्होंने भी हाईलाइट करके बताया इसको कि दिस आर द इम्पोर्टेंट जनरल, मतलब आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन्हीं ट्रांजैक्शन के आसपास घूमते रहते हैं स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन्हीं ट्रांजैक्शन के आसपास घूमते रहते हैं। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना क्या है कि वी नीड टू प्रैक्टिस इट एंड वी शुड नो द स्ट्रॉन्ग रीजन कि व्हाई दिस अकाउंट इज डेबिट और व्हाई इट इज क्रेडिटेड। इट शुड बी वेरी क्लियर। ओके फाइन, चलिए एनी अदर क्वेश्चंस इन दिस स्टूडेंट्स? इसका नहीं और इसमें कुछ पूछना है? यूनिट 1 जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या है? नहीं वो सिलेबस तो आपको जल्दी से मिल जाएगा, डोंट वरी, यू विल गेट इट। वी हैव ऑलरेडी submitted the syllabus and all the things, so that would be shared in the class group, don't worry about it. Yes, Devansh, Mohit, Naman, Rhythm, why this very less student? Acha, last period. Yes, any question? No. So now students, now what we need to do, dear students, है ना, तो ये तो हमारा हो गया पोर्शन, ठीक है ना। तो अब देखें अब इसमें कि और कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना। तो उन ट्रांजैक्शन को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। वी कैन जस्ट गो थ्रू दिस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है ना, जीएसटी रिलेटेड वो वाले कराउंड है। यस सॉरी, तो जिसमें जीएसटी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वो वाले करा दो ना। हाँ हाँ श्योर, चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन, generalize the following transaction in the books of Gaurav, Delhi, balances are given.
है ना. So these balances are given. You can see कि debit balances are given. Debit balances: cash in hand, cash at bank, stock of goods, furniture, building. Input CGST, inputs at GST, and input IGST 5,000 rupees. Daters: Vijay 2,700, Anil 1,500, Ashwini 2,000, Anupam 1,800, and Madhu 5,000. These are the debit balances. These are the debit balances, and these are the credit balances. See, students, do not expect that every time whenever you would be solving the questions, so the questions will always start with the commence business with the cash rupees 5,000, 10,000 or something. भाई हर साल तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा ना. Hopefully you are able to understand. ठीक है. Means every year the business will not start. Every year the business will not start. What will happen? Once business started, in the next year what will happen? Next year the balance will be transferred from current year to the next year. The balance would be transferred to the current year to the next year. Hopefully you are able to understand this. समझ में आ रहा है ये में? Yes, sir. So how the balances will be transferred? How the balances would be transferred? So this is the thing here. You can see कि जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखे होंगे, हम सारे डेबिट बैलेंसेस को यहाँ पर लिखते हैं और सारे क्रेडिट बैलेंस को यहाँ पर लिखते हैं. ये जो है इसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज. दिस इज कॉल्ड ओपनिंग entries when the balances transfer from one year to the next year. This is called the opening entry. This is called the closing entry. This is called the transfer entry. ये opening है, ये closing है, ये transfer है. ये सारी चीजें इसी में. Hopefully you are able to understand, students. Yes, sir. ठीक है. देखो इसमें क्या किया गया है. अब हमें मालूम है कि इसमें कौन कौन सी चीजें डेबिट होंगी, कौन कौन सी चीजें क्रेडिट होंगी. सो डेबिट होने वाली चीजें केवल बैलेंसेस किनके ट्रांसफर होते हैं. ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज में केवल 3 चीजें आती है. असेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. सो दिस ऑल आर व्हाट? असेट्स. ठीक है. एंड दिस आर द लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, बिकॉज वी नो कि asset is always equal to liabilities plus capital. So hence debit would be equal to credit. ये समझ में आ गया हमें स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है. तो क्वेश्चन में जो भी बैलेंसेस हमें दे रखे हैं उनके बेसिस पर हम लोग ये ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे. ये देखो नीचे क्या लिखा है. यू कैन सी दिस. बीइंग द बैलेंसेस ब्रॉट इन फ्रॉम लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल से हमने बैलेंस को करंट ईयर में ट्रांसफर किया. Okay. Yes. If you have any doubts, any questions in this, you can ask students. Yes, sir. Clear है ये? तो ये एंट्री कौन सी हुई मोहित? इस एंट्री को हम क्या बोलेंगे? पिछले साल की जो आगे फॉरवर्ड की ये वो. हाँ, है ना. हर साल हम तो अकाउंट्स 12 मंथ के लिए बनाते हैं ना. अकाउंट्स हमने 12 मंथ के लिए बनाया. तो 31 दिसंबर को जो भी चीजें बच जाएंगी, जो भी एसेट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी कैपिटल है, ऐसा थोड़ा ना है कि 31 मार्च को जो चीजें रिमेनिंग होगी तो वी आर गोइंग टू डू समथिंग विद दिस. ऑब्वियसली दैट वुड बी यूटिलाइज्ड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर. ठीक है ना? Yes, आर यू sir. गेटिंग दिस पॉइंट और सम कंफ्यूजन इज देयर? नहीं सर, आ गया सर. है ना भाई. 31 दिसंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक हमने बड़ा सा केक ऑर्डर किया और बहुत बड़ा सा वो केक या बड़ा सा पिज्जा लेकर के आए, है ना. चलो पिज्जा तो फिनिश हो ही जाता है ना. लेट्स से इसकी केक है, बड़ा सा केक है और 31 को हमने बढ़िया से सेलिब्रेशन किया. सारी कुछ चीजें चल रही है अल्टीमेटली. और जैसे ही 12 बजे कि उसके बाद में सब लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया. बट अ बिग पीस ऑफ केक इज रिमेनिंग. क्या करेंगे हम उसको? एक जनरल सेंस में पूछ रहा हूँ. टेल मी. सर अगले दिन वापस will keep in fridge. हम उसको फ्रिज में रख देंगे and we may be using it the next day, maybe not, maybe, but एक जनरल सेंस में how the things are going to change. कुछ भी नहीं बदलेगा. 31 दिसंबर को हम सो गए, दूसरे दिन उठा तो नया साल शुरू हो गया.
how the things got changed? No, nothing. Only the number is getting changed. Yes, this is the previous year and this is the current year. This is the 2016, 2020, or this is the 2021. That's it. So opening and closing, just simply the carry forwarding the balances from one year to the next year. That's it. Okay. So not every time we would be starting the business. So not every time we would be finding the transaction that is commence business with cash or whatsoever. At the end of the year, on 31st March, we would be making the same entry. And on the first April also we would be making the same entry. But जब हम इसको 31st को हम ऐसे ही बना रहे होते हैं, है ना? जब 31st को हम लोग बना रहे होते हैं इसको, तो this is called the closing entries. और जब हम 1st April को बना रहे होते हैं, तो this is called the opening entries. In general sense, it is called transfer entry. Okay. चलिए. अब इसमें ये टैक्सेस का भी बताता हूँ कि ये जो है कि भाई अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं उस दिन तक हमारा इनपुट्स CGST SGST इतना था तो ठीक है, इतना सेट ऑफ नहीं हुआ तो इसको नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट करेंगे. हाँ देखो लाइबिलिटी साइड में नहीं मिलेगा आपको, है ना. जनरली यू विल नॉट फाइंड इन द लाइबिलिटी साइड. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो क्या बोलती है कि 31st मार्च तक का जो पूरा टैक्स आपके पास में जितना भी आपने कलेक्ट कर रखा है वो पूरा की पूरा पेड ऑफ कर दीजिए. सर मतलब ये अगर वो आपके टैक्स है जो हमारे पास हैं, इकट्ठा किया हुआ है जो गवर्नमेंट को देना है. नहीं, ये टैक्स वो है जो हम पे कर चुके हैं. इनपुट है ना बेटा, ये पे कर चुके हैं. आउटपुट टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करना है वो आउटपुट है. कलेक्टेड टैक्स इज द आउटपुट. अच्छा, और गवर्नमेंट कर दिया इसलिए अभी अगले साल हाँ, नहीं आएगा वो. हाँ वो अगले साल कभी भी नहीं आएगा, किसी भी क्वेश्चन नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सारे जो टैक्सेस हैं वो अपनी डेट तक कलेक्ट कर लेती है. गवर्नमेंट अपना पैसा टाइम से ले लेती है सभी बिजनेस में. क्या होगा फिर इनपुट का क्या होगा? ये जो इनपुट जीएसटी है ना, इनपुट जीएसटी इसका बेनिफिट हम नेक्स्ट ईयर में लेंगे क्योंकि हमने तो पे किया है ना, हमने पे किया है. तो अब जो गुड्स हमारे पास में बचा हुआ, देखो हमारे पास में कुछ गुड्स भी तो बचा होगा ना. अच्छा, अगर हमारे पास में कुछ गुड्स बचा हुआ है जो अगला टैक्स होगा उसमें से ही माइनस करके देंगे. एक्चुअली वेरी गुड. तो जब नेक्स्ट ईयर जब भी हम लोग गुड्स सेल कर रहे होंगे, जब हम उसको सेल करेंगे, है ना, जब हम उसको सेल करेंगे तो उस पर टैक्स कलेक्ट होगा. तो वो टैक्स जो कलेक्ट होगा उसको और इस इनपुट means that output and this inputs would be set off against each other. Okay? Yes sir. ठीक है. अब ये देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है यहाँ पर, है ना. ये क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंसेस है तो इनको हमने रिकॉर्ड कर लिया. अब ये देखिए एक ट्रांजैक्शन दे रखा है, ठीक है. दिस वन द ट्रांजैक्शन क्या है कि परचेज फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स फरीदाबाद मतलब यूपी. परचेज ये कहां पर जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गौरव दिल्ली. ये दिल्ली के हैं. और परचेज फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स फरीदाबाद गुड्स 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% केस डिस्काउंट. IGST पेड एट 12%, पेड चेक इमीडिएटली. ठीक है भाई. राहुल ट्रेडर्स फरीदाबाद मतलब यूपी, उनसे 50,000 का गुड्स परचेज किया है, उन्होंने 20% डिस्काउंट दिया है, 5% केस डिस्काउंट दिया है और IGST 12% उस पर एप्लीकेबल है. पेमेंट चेक से हुआ है. अब देखिए यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को अपन लोग देख लेते हैं. इसके पहले एक चीज सभी लोग समझ लें, स्टूडेंट जो भी हैं क्लास में. डिस्काउंट एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है ना. Discount is given by one businessman to the another businessman, and due to offering the discount, whatever the taxes is reduced, the government do not give any benefit for it. Government नहीं बोलती डिस्काउंट दो. ये तो आपके आपस के रिलेशन है कि आप डिस्काउंट दे रहे हैं. मतलब कि आपको टैक्सेस पूरे अमाउंट पर लगाना है, TD ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद में, और केस डिस्काउंट के पहले टैक्सेस लगेंगे. इज दिस पॉइंट क्लियर मोहित? नहीं सर, एक बाबा नहीं, कहने का मतलब है कि देखो भाई 50,000 का गुड्स है,
समझो 50,000 का गुड्स है तो उस पर 20% ऑफर किया, तो कितना हुआ 50,000 का 20%, ना 50,000 का 20% हुआ 10,000, तो ये 10,000 रुपीज को माइनस किया गया और 40,000 है, तो इस 40,000 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे 12%, है ना, एड 12% जीएसटी, तो इस पर 12% कितना हुआ, 4,800। 12 4 जा 48, है ना, तो 4,800, तो भाई 40,000 का गुड्स हमें मिल रहा है 4,800 रुपीज में, है ना, दैट इज द थिंग। Yes. अब इसके ऊपर अगर हम कोई डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो डिस्काउंट ऑफर करने के कारण टैक्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट उतना ही टैक्स लेगी जितना टैक्स बन चुका है। अब इसके बाद में कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑफर करने के कारण जो भी फायदा नुकसान हो रहा है वो बिजनेसमैन का है, नॉट ऑफ तो वो गवर्नमेंट। जो 5% होगा वो हम 40,000 में से काटेंगे या फिर 44,800 में से काटेंगे? 44,800 में से गवर्नमेंट को तो पूरा टैक्स देना पड़ेगा, है ना, दैट इज द थिंग आई एम टेलिंग यू, है ना, दैट इज द थिंग आई एम टेलिंग यू कि भाई 50,000 का गुड्स है, लेस टीडी कितना 10,000, ये 40,000 हो गया, प्लस जीएसटी कितना 4,800, 44,800 एंड लेस 5% सीडी। अब इसके ऊपर 5% सीडी हो रहा है तो 5% इसका कितना हो जाएगा 2240। समझ में आया बेटा, ये क्लियर है ना। तो जीएसटी कब लगेगा, ट्रेड डिस्काउंट के बाद में, पर केस डिस्काउंट के पहले, यस। है ना। जीएसटी जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस कब लगेंगे, ट्रेड डिस्काउंट के बाद में, लेकिन केस डिस्काउंट के पहले, क्योंकि अगर केस डिस्काउंट, देखो जितना डिस्काउंट होगा प्राइस उतनी कम होगी, जितनी प्राइस कम होगी टैक्स उतना कम होगा और उतना गवर्नमेंट का नुकसान होगा, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो ठीक है, दिस इज द म्यूचुअल ट्रेड मार्जिन गिवन बाय वन बिजनेसमैन टू द अनदर बिजनेसमैन। ट्रेड डिस्काउंट के बाद में, है ना, ट्रेड डिस्काउंट के बाद में जीएसटी अप्लाई होगा और उसके बाद में अगर केस डिस्काउंट ऑफर हो रहा है तो वो उस बिजनेसमैन को खुद बेयर करना है, उसके ऊपर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन बता दिया। अब इसके बाद में इसमें क्या चीज होगी, ये हमने इसके एंट्रीज बना दी, यू कैन सी, ये हो गया